Hello all. Let's begin with the second chapter of your book, which is polynomials. In this part, we will cover introduction and types of polynomials. First comes the definition. An expression of the form p of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot dot up to an x power n. यहाँ पे आप देख रहे हो you have already studied about coefficient and terms of a polynomial. Okay, in this case you can easily see an is not equal to 0. यहाँ पे जो भी a की वैल्यू है, मतलब कभी भी आपका जो भी x के कोफिशिएंट की वैल्यू होगी दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज आप जानते हो किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं then it will give 0 as a result. Okay, and this expression is called a polynomial in x of degree n. Why we are saying degree n? Because जो भी expression आपके पास polynomial का होता है, the highest power of a expression is called the degree of that particular expression. Okay, in this case a0, a1, a2, these are the real numbers and each power of x is a non-negative integer. Non-negative integer का मतलब होता है whole numbers. आप जानते हो integers are collection of natural numbers, 0 and the negative of natural number. But जब भी हम बात करते हैं non-negative integer की, यहाँ पे आप whole number consider करोगे. Suppose आपके पास x to the power 0 भी है. That is not a problem because you know that x to the power 0 is 1 always and a constant value is also considered as a polynomial. Here I have taken some examples. You can see first one is 3x plus 5. This one is also a polynomial of degree 1. Why degree 1? Because you can see the power of x is 1. The highest power आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है x की जो power है वो 1 है. सेकेंड केस में आप देख सकते हो in this expression the highest power of x is 2. That is why we will say this is a polynomial in x of degree 2. Similarly you can see for degree 3 the highest power is 3 and the last one is degree 4. In this case the highest power of z is 4. Okay, here is an important note. Root x plus 3 and the second one is 2 divided by y minus 2 etc. are not polynomials. Then you must be thinking why these values are not polynomials, whether it looks like, see, root x का मतलब क्या होता है, x to the power 1 by 2 and in the definition it is already clear x की जो पावर है वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते, हम डेसिमल नहीं ले सकते और हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं ले सकते. That is why the first term is not a polynomial. In the second case 2 by y minus 2, आप देख रहे हो 2 divided by y minus 2 का मतलब है y minus 2 को जब आप लिखोगे उसके पावर में -1 आ जाता है. So that is why it is also a negative integer. Next we will see types of polynomial based on terms. आपने टर्म्स पढ़ा हुआ है. टर्म्स क्या होता है, टर्म्स के बारे में आपको पता है. यहाँ हम देखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स. वन टर्म मीन्स सपोज आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे दो नोटेशन कंसिडर करते हैं, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसिडर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्लस साइन एंड सेकेंड वन इज़ माइनस साइन. हाँ, मल्टीप्लाई हो या डिविजन हो उस केस में उसे हम अलग अलग टर्म कंसीडर नहीं करेंगे. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज़ -9. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू बट स्टिल इट इज़ अ मोनोमियल. सेकेंड वन इज़ 32 MP. यहाँ पे आप देख रहे हो 32 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, m इज़ अ वेरिएबल, p इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, बट it is not separated by a mathematical operation like plus or minus. That is why it is called a monomial. Now coming forward to binomial. Binomial में क्या होता है, सेम है. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो हमारे सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से. मैंने आपको अभी बताया था
multiplication will not consider, division will not consider, but if you see a mathematical operation plus or minus, then the terms will be separated. Means यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 7x plus y है, that means here we have two terms. 7x is the first term and y is the second term. Similarly, you can see 3x minus 5, 2z plus 3y. These are the another examples. Third one is trinomial. ट्राई का मतलब सुनते ही आपको समझ आ रहा है. ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स होने चाहिए. आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, देर आर 3 वेरिएबल्स a, b, c and first term is a, second term is b and the third term is c. Similarly, in the second example you can see there are 2 variables x and y, but the first term consists of x square y, the second term is xy square and the third term is y square. आप यहाँ पे एक नोट मैंने दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना. An expression containing one or more terms with non-zero coefficient is called a polynomial. See, polynomial का मतलब क्या होता है? Poly means many and nomial means term. That is why maybe here we have considered monomial, binomial, trinomial, tetramonomial. लेकिन यहाँ पे जब भी आप देखते हो, आप एक constant value भी है, monomial भी है, that will also be considered as a polynomial. Okay, so a polynomial may contain any number of terms, one or more than one. तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई मोनोमियल भी है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल भी कह सकते हैं अगर वो 2 टर्म कंसिस्ट कर रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे अगर 50 टर्म्स भी आ जाए तो उसे आप कंसिडर करोगे पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डिग्री मीन्स व्हाट? द हाईएस्ट पावर इन एन एक्सप्रेशन. लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट वन इज, आप इसमें देख रहे हो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है. आप यहाँ पर a और b हमारा कांस्टेंट वैल्यू है एंड x इज़ द वेरिएबल. यहाँ पे हमारे पास x की जो पावर है वो 1 है. दैट इज़ वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. द एग्जाम्पल्स आर √2x प्लस 3. अभी आपको यहाँ पे रूट देखकर ऐसा लग रहा होगा, मे भी किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, रूट की वैल्यू पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होती. बट नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट्स. Value of coefficients can be a decimal value, can be an irrational value, can be a positive value, negative value. आप कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट ज़ीरो. बस ज़ीरो नहीं लेना है आपको, लेकिन जो x की वैल्यू है उसका पावर हमारे पास क्या होना चाहिए? अ होल नंबर. सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मीन्स यहाँ पे आपके पास पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी 2. जस्ट लाइक यू कैन सी p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आप देख सकते हो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है. दैट इज़ वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल्स आर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. हियर द हाईएस्ट पावर इज x स्क्वायर. दैट इज़ वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स फॉर्म करके देख सकते हो. थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. 2 पॉलिनोमियल देखने के बाद आपको क्लियर हो रहा है क्यूबिक मीन्स व्हाट? द हाईएस्ट पावर शुड बी 3. इन दिस केस द एक्सप्रेशन ऑफ p ऑफ x इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक फर्स्ट वी हैव टेकन लीनियर, इन दैट केस द हाईएस्ट पावर इज 1. सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, in that case the highest power is 2. Next one is cubic, in this case the highest power should be 3. Examples are 2x cube minus 3x square plus 8x plus 1. यहाँ पे आप देख रहे हो the highest power is 3, that is why it is a cubic polynomial. And one more thing, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास bx स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, cx की वैल्यू होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई वैल्यू है, सपोज 4x क्यूब माइनस 3, then also it will be considered as a cubic polynomial. हमें हाईएस्ट पावर देखना है, टर्म्स से मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ हमें पावर पे ध्यान देना है. एंड द लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक मीन्स इट शुड कंटेन द हाईएस्ट पावर एज 4. आप एक्सप्रेशन देख सकते हो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब
plus cx square plus dx, and last one is e. In that case, you see the highest power is 4. Similarly, the second example is 3z4 minus 2z cube plus 3z square minus 9z and minus 13. यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है. So these are all about types of polynomials.